اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور چیئرمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان نے ایک وہ کارڈ جو بہت عرصے سے ان کی جیب میں تھا وہ اپنا سیاسی حق سمجھتے ہوئے وہ استعمال کر دیا ہے، اور اپنا وہ کارڈ جو وہ کسی وقت بھی کھیل سکتے ہیں اس کو ابھی تک اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، اور حکومتی 2-3 مہینوں کی جو تیاریاں تھیں اس لانگ مارچ کو سبوتار کرنے کے لیے، عوام پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے، ان ساری تیاریوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اور عمران خان نے وہ کارڈ ضائع نہیں کیا۔ یقیناً عمران خان نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، بہت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس موقع پہ جب عوام کا سمندر پنڈی کی تمام سڑکوں کو جیم کیے ہوا تھا اور اپنی بھرپور تیاری میں تھے، اور یہی ان کی خواہش تھی کہ آج اسلام آباد جانے کا حکم ملے گا، اور وہ جانے کے لیے تیار تھے، اور ادھر حکومتی تیاریاں بھی اپنے عروج پہ تھیں۔ کنٹینرز کی بات کر لیں تو پورے اسلام آباد کو کنٹینر سے بند کیا ہوا تھا۔ جہاں فورسز کا تعلق ہے، جدید اسلحے سے لیس، ڈرون سے لیس، ٹیئر گیسز سے لیس بے تحاشا 30-40 ہزار اسلام آباد پولیس، سندھ پولیس، رینجرز، FC کے اہلکار موجود تھے عوام کے سمندر کو روکنے کے لیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر عوام کو کہا جاتا اسلام آباد کی طرف بڑھنے کے لیے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے، تو ابھی اس وقت حالات کیا ہوتے۔ لیکن عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی ایسی دلدل میں نہیں پھنسانا چاہتے، جبکہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کو ایک جھٹکے کی ضرورت ہے اب مکمل تباہی کے لیے۔ اور دوسری بات جو عمران خان نے جو دنیا کو یہ بتائی ہے کہ وہ آئین اور قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیتے، یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اتنے جوش اور ولولے کے باوجود وہ اس سائٹ پہ نہیں گئے، اس راستے کو نہیں چنا انہوں نے جس میں تباہی و بربادی تھی اس ملک اور قوم کے لیے۔ لاشیں گرنی تھیں، خون بہنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کی وہ پریس کانفرنس جس میں خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں گرنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ تو عمران خان اس راستے کو نہ چن کر آج قوم کے دلوں میں انہوں نے اپنی اور جگہ بنا لی ہے۔ پھر اس وقت جب یہ چیز، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت انہوں نے اپنے آپ پہ آزمائی ہے، دیکھی ہے، بہت قریب سے موت کو دیکھا ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مظلوم عوام جو سالوں سے 75 سالوں سے پس رہی ہے اس دلدل میں، اس ظلم اور بربریت کا مقابلہ کرتی آ رہی ہے، اس کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو مزید اس سرد موسم میں ان کو اور زیادہ اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس شدید سرد موسم میں ان بوڑھے، ان بچوں، ان بیماروں، ان عورتوں کا جو اس لانگ مارچ میں شریک ہوئے تھے، جو پنڈی تشریف لا چکے تھے، جو اس لانگ مارچ کا، اس بڑے جلسے کا حصہ تھے، ان کو مزید کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اس سرد موسم میں۔ اور اس انتظامیہ اداروں کے وہ کچھ سربراہ جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں حکومت کی، ان کی بربریت، ان کے ظلم کا
निशाना नहीं बनना देना चाहते थे, तो उन्होंने वो कार्ड खेल लिया जो अरसे से उनकी जेब में था और उन्होंने नहीं खेला। और इस कार्ड को, लॉन्ग मार्च को, इस्लामाबाद पे चढ़ाई का वो कार्ड अभी तक अपनी जेब में रखा हुआ है। यकीनन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा पैगाम था, और ऐसे ही होना चाहिए था कि जब आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप उसका चेंज ओवर हो रहा है, उनकी अनाउंसमेंट हो गई है, तो अगर इस मौके पे इमरान खान इस तरह का कदम उठाते तो बाद में उन्होंने भी कहना था जी आपने हमें मौका नहीं दिया। तो ये भी एक अच्छा हो गया है, एक अच्छा इकदाम है। इससे पहले भी जब प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद, एक बहुत अच्छा इकदाम था, एक बहुत अच्छा डिसीजन था, जो दुनिया को पैगाम दिया गया कि सारी लीडरशिप एक पेज पे है। और ये दूसरा पैगाम उन्होंने एक दिन छोड़ के दूसरा पैगाम भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया है कि फ़ौज इस अवाम की है, वो फ़ौज के साथ है। उन्होंने पैगाम दे दिया है कि फ़ौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं। अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ ही जाते तो पुलिस किसकी थी, FC किसकी थी, रेंजर्स किसके थे? ये भी इस अवाम के हैं, इस अवाम में से हैं, अवाम का हिस्सा है। लेकिन मजबूरन उन्होंने वो इक़दाम करना था जो उनके आकाओं ने उनको दिया हुआ था अपनी नौकरी के लिए। तो उससे इमरान खान ने इस कौम को, इन इदारों को, हर तरह के जो इसमें शामिल थे उनको बचा लिया है। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान ने इन 7 महीनों में इस कार्ड को इस्तेमाल करने में ताख़ीर ज़रूर की, लेकिन ये उन्हीं के एक ज़हन में ये चीज़ थी, अगर ये शुरू में कर देते तो शायद इसका फ़ायदा वो ना होता, और उसी तरह होता जैसे कौमी असम्बली से इन अंसारों ने रिज़ाइन किया, कौमी असम्बली से आउट हुए, और उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया है कि इन्होंने राजा रियाज जैसे लोटे को बिठा के हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बना के और किस तरह के घिनौने कानून पास किए हैं रातों रात। अगर शुरू में ही बेशक पंजाब की हुकूमत इनके पास थी, KPK की हुकूमत इनके पास थी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सारी हुकूमतें, यानी आप कह सकते हैं कि 80% जो पाकिस्तान का एरिया है उस पर हुकूमत इमरान खान की है। तो ये कार्ड वो शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया इन्होंने। एक आईनी जो बुरहान पैदा होना था, कानूनी बुरहान पैदा होना था, वो उन्होंने पैदा नहीं किया। लेकिन इस दौरान वो अवाम के पास गए, अवाम को अपना सारा जो मुद्दा था वो बयान किया, अवाम को जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है पिछले 75 सालों में, वो सारा उनके सामने रखा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वो जो PDM की जमातें हैं किस तरीके से वो नंगी हुई, उनके लीडर किस तरीके से नंगे हुए अपनी गलत हरकतों की वजह से, और हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, उनकी चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी सामने आ गई हैं जिसका जवाब तो उनको देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम उनके सामने आ गए हैं जिनका जवाब उनको कौम को दे के जाना चाहिए। अगर नहीं दे के जाएंगे तो ये चीज़ें छुपेंगी तो नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएंगी, और ये इस अजीम इदारे पे एक बहुत बड़ा दाग इन्होंने लगाया है, बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। और मैं ये कहूँगा, अगर जनरल यहिया के बाद किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ आवाम इतनी उठी है, तारीख़ का इतनी गलत तारीख़ का हिस्सा बने हैं, तो वो जनरल बाजवा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि उन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, उन पे जो दाग लगे हैं करप्शन के, उनकी फैमिली के एसेट्स के, उनका जवाब वो ज़रूर दें इस अवाम को, ताकि जो अवाम और
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इस फ़ौज के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं, जो खला पैदा हुआ है, उनको दूर किया जा सके। मैं नाज़रीन आपसे दोबारा ये कहूँगा कि ये दूरियां जो है ये फ़ौज और आवाम के दरमियान नहीं है, ये फ़ौज की क़यादत और आवाम के दरमियान है। और उम्मीद करते हैं कि नई क़यादत जो आई है वो इस तारीख़ को दोहराएगी नहीं, वो इससे सबक सीखेगी और जो गलतियाँ इससे पहले होती रही हैं, जिसकी वजह से अवाम और इस क़यादत के दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं, खला पैदा हुआ है, उसको ये पुर करने की कोशिश करेंगे और अवाम की बेहतरी के लिए सोचेंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि वो पार्टी, वो सियासी पार्टी, वो सियासी ग्रुप जो मकबूल तरीन हो और जिसने साबित किया हो, जैसे कि ज़िमनी इलेक्शंस में, पंजाब के कौमी के ज़िमनी इलेक्शंस में किस बर्तरी से इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं, वो इंतशार की तरफ क्यों जाएगी? और उस वक्त कि जब उनको पता है कि हुकूमती ओहदेदार जो चुन चुन के इस PDM की हुकूमत ने लगाए हुए हैं, जो किसी मौके को ज़ाया नहीं होने देंगे। इससे पहले भी आपने देख लिया हुआ है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन किस तरह के मुकदमों के पहाड़ उनके खिलाफ खड़े कर दिए गए हैं। इमरान खान अदालतों के चक्कर लगा लगा कि दुनिया को ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ है, क्या सौतेली माँ का सलूक किया गया है। और एक तरफ जब उन पर कत्लाना हमला होता है और उसकी FIR तक उनकी मर्ज़ी से दर्ज नहीं होती, जबकि उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया में भी ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ को आपने देखा होगा लंदन से भागते हुए, कि लंदन में जिस जगह को अपने लिए वो एक सेफ जगह समझते थे, वहाँ से भी उनको भागने पे मजबूर किया है डॉक्टर तस्नीम हैदर के बयान के बाद। मजबूरन उन्हें कहीं और पनाह लेनी पड़ी है। अभी तो उन्होंने 10 दिनों का बताया है, लेकिन 10 दिनों में अब 2 दिन ही रह गए हैं। देखते हैं वापस आते हैं नहीं आते हैं, वो अब देख रहे हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन यकीनन नाज़रीन, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में किसी बड़े से बड़े हुकूमती ओहदेदार को ये जुर्रत नहीं होती कि वो पुलिस को डिक्टेशन दे, वो किसी की सिफारिश करे। ऐसे मुल्कों में ऐसी चीज़ों का सोचना भी मुहाल है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि अपनी मर्ज़ी के इन्होंने कठपुतलियाँ लगाई होती हैं जो शाह से ज़्यादा वफादार होती हैं, और यही वजह है कि अवाम तक को आज तक ज़लील व ख्वार किया जाता रहा है। और वो कानून जो बनाए गए हैं वो बड़ों के लिए नहीं है, वो ताकतवरों के लिए नहीं है, वो कमज़ोरों के लिए हैं। वो इस अवाम को मज़ीद मारने के लिए हैं, इनको और दबाने के लिए हैं। इन कानून का जो बनाए गए हैं, इनका इस्तेमाल यही होता है, गलत इस्तेमाल होता है। ये थाना कचहरी अदालतें ये बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हक़ में, और इस गरीब अवाम जो 22 करोड़ अवाम है इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। रूल ऑफ लॉ को कभी वो मुकाम नहीं दिया गया पाकिस्तान में जो बाकी बड़े मुल्कों में है। तो इससे पहले भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा आपने देख लिया होगा हफ्ता 10 दिन पहले। उसके डायरेक्शंस अब कैसी हैं, किधर जा रही हैं, किस समत पे वो मुकदमा आगे बढ़ रहा है। 13 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है, 10, 12, 14 दिनों की बात रह गई है। आपको वो उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा, आप देख लेंगे कि उसका क्या नतीजा है। और इसी तरह आपने पाकिस्तान में भी अपनी अदालतों का हाल देख लिया है। नैब के जितने केसेस थे जो कई दहाइयों से चल रहे थे, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। रातों रात किस तरह का कानून इन पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया और उसका नतीजा क्या निकला। इनके वो कानून ये सारे आज़ाद हो चुके हैं। अरबों रुपए की जो करप्शन थी वो पाक साफ हो चुकी है, ये हाजी बन चुके हैं। यही इस मुल्क की मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एक इस मुल्क को तबाह करने के लिए यही वो लोग बैठे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और करते चले जाते हैं। इनको कोई शर्म व हया नहीं है और कभी इन्होंने अवाम के बारे में सोचा तक नहीं है। तो वो पार्टी
جس کو اپنی جیت کا یقین ہے وہ انتشار کی طرف کیوں جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ عمران خان کا یہ فیصلہ کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس نظام سے وہ آؤٹ ہو جائیں گے، اور جب وہ پنجاب کی اسمبلی سے آؤٹ ہوتے ہیں یا ڈیزالو کی جاتی ہے، کے پی کی اسمبلی سے آؤٹ ہوتے ہیں یا ڈیزالو کی جاتی ہے، اسی طرح جو سندھ کے ہیں جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، تو جب اتنے زیادہ پارلیمنٹیرینز اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے تو کیا ایک آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا؟ اس کا کیا سدباب کرے گی یہ پی ڈی ایم کی حکومت؟ یقیناً جب اتنے زیادہ بائی الیکشن ان کو کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی تو جنرل الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ان کا یہ فیصلہ اس پی ڈی ایم حکومت کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو اس سوچنے پہ الیکشن کمیشن کو سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس عوام کو اس بڑے ایک انتشار سے بچایا ہے، جو کہ بالکل اس جذبے کو بھانپ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، اور یقیناً اب لوگ سارے جلسے تک پہنچے بھی نہیں تھے، بہت سارے لوگ راستوں میں تھے، سڑکوں پہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے، اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں رہیں گے۔ بہت بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے، اور یقیناً مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا فیصلہ اور آگے اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔